Hello students, I Zaid Abbas. Welcome to my YouTube channel Feel Real Chemistry with Zahir sir. Today we will study third type of chemical reaction of phenol. Third type of reaction of phenol. In earlier classes we will studied two types of chemical reactions. First is reaction of OH group. Second is condensation reaction. And third type of reaction is reaction of benzene ring. Reaction of benzene ring. In these reactions, benzene ring of phenol participate in chemical reactions. We know that phenol is a aromatic compound, and we also know that electrophilic substitution reaction is main reaction or characteristic reaction of aromatic compound. So first type of reaction is electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. In phenol, OH group is present. OH group is present. So OH is a ortho and para direct group. Ortho and para direct group. So we can say that in phenol, electrophilic substitution reaction takes place at only ortho and para position, like chlorobenzene. जिस टाइप से क्लोरोबेंजीन में हमने देखा था कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर जितनी भी रिएक्शन है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हो रही थी, वैसे ही मतलब इस फिनोल के अंदर भी रिएक्शन है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही कंप्लीट होगी। वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कंप्लीट क्यों होती है, उसके लिए अपन उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पिछले वाली क्लास में देखी है अपन। तो नेगेटिव जो चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आता है। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. First is halogenation. Here, bromination. Example of halogenation reaction. Second, nitration. Third, sulfonation. And fourth is Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reaction further classified in two types: Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation. इसके अंदर फिनोल के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो ध्यान देने वाली बात ये है, दो इंपोर्टेंट रिएक्शंस रहेगी. इंपॉर्टेंट रिएक्शन ब्रोमिनेशन एंड नाइट्रेशन. ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन जो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. क्यों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि इसमें पॉसिबिलिटीज दो है, दो पॉसिबिलिटीज है. अपने आरबीसी सिलेबस की बात मैं करना चाह रहा हूं कि आरबीसी के अंदर दो पॉसिबिलिटीज वाली जो कंडीशन जो रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें, फिनोल में. बाकी क्लोरोबेंजीन है, बेंजोइक एसिड है, नाइट्रोबेंजीन है, इनमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज है. अगर ऑर्थो पैरा पे लगेगा तो ऑर्थो पैरा पर, अगर मेटा पे लगेगा तो मेटा पर. बाकी ये जो अदर पॉसिबिलिटीज है वो सिर्फ किसमें, फिनोल में. आपको ये ध्यान रखेंगे. क्या है पॉसिबिलिटीज? रिएक्शन ब्रोमिनेशन. तो ब्रोमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट इन द प्रेजेंस ऑफ Br2. In bromination reaction, addition of Br takes place. So when phenol react with Br2 in the presence of non-polar solvent like CS2 or CCl4. ये CS2 और CCl4 है, वो नॉन पोलर क्या है, सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट. In bromination reaction, addition of Br takes place at ortho and para position of phenol because OH group is ortho and para director. So product is Br attached at ortho and para. Removal of HBr takes place. Removal of HBr takes place. बताइए आपको जहां भी Br ऐड होगा वहां से क्या रिलीज होगा, H, इसलिए HBr रिलीज हो जाएगा. सेकेंड कंडीशन, Br2 react with phenol in the presence of water, means polar solvent. Then 3 molecules of Br2 takes place and 3 Br attached with phenol at ortho, para and ortho position. इस टाइप से ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो प्लस 3HBr. यहाँ तीन, वह इस दो पॉसिबिलिटीज की बात यहाँ कर रहा था. अगर ब्रोमीन के साथ
रिएक्शन करवा रहे हैं CH2 या CCl4 की प्रेजेंस में, तब तो नॉर्मल जो रिएक्शन होती है एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर। लेकिन अगर वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो तीनों पोजीशन पे Br ऐड होगा, मेटा भी नहीं, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो। वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब अपन देखते हैं तो उसमें नेगेटिव साइन जहां आता है, कहां आता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इसलिए ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे जुड़ जाएगा। काम क्या हुआ, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। Second is nitration reaction. We know that nitration reaction complete in nitration mixture concentrate H2SO4 and HNO3. Here dilute HNO3 and H2SO4, concentrate HNO3 and H2SO4. दो पॉसिबिलिटीज है, बाकी हर जगह एक ही आती है, या दो पॉसिबिलिटीज आप क्या देखेंगे, अगर डाइल्यूट और कंसंट्रेट दो पॉसिबिलिटीज है, तो डाइल्यूट HNO3 H2SO4 है नॉर्मल रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन, NO2 ऐड करवा देंगे आप, इस टाइप से प्रोडक्ट बनेगा। NO2 ऑर्थो पर और NO2 पैरा पर, H2O रिमूव हो जाएगा, 2 नाइट्रोफिनोल एंड 4 नाइट्रोफिनोल आर फॉर्म्ड, बट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HNO3 and H2SO4 then NO2 added with 3%, NO2 and NO2 plus 3H2O. It is picric acid. पिक्रिक एसिड। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, जैसे फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ और फिनोल की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 के साथ करवाते हैं, तब तो तीनों पोजीशन जोड़ना, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे, और अगर इसके अलावा कंडीशन आती है तो आपको एक बार ऑर्थो पर एक बार कहां ऐड करना है, पैरा पे। ये सिर्फ फिनोल में ध्यान रखना है, आरबीसी के अंदर और किसी में ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई के अंदर क्या होता है कि एनिलीन टॉपिक होता है, एनिलीन, उसके अंदर भी ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है ब्रोमिनेशन रिएक्शन के अंदर। थर्ड टाइप रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन रिएक्शन complete in the presence of only concentrate H2SO4. We know that in sulfonation reaction addition of SO3H group takes place at ortho and para position because OH is ortho and para director group. So SO3H ortho पे और SO3H para plus H2. Name 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। Similarly, name of this compound is 4-hydroxy benzene sulfonic acid. Fourth type reaction is Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reaction complete in anhydrous AlCl3. Anhydrous AlCl3. तो anhydrous AlCl3. Alkylation and acylation. Alkylation, in alkylation reaction alkyl group add ortho and para position. Product is CH3 ortho पर और CH3 para और माइनस S। ऑर्थो क्रिसोल एंड पैरा क्रिसोल, पहले इसके नाम पढ़ के आए। आईयूपीसी नेम लिखना चाहो तो 2 मेथिल फिनोल और 4 मेथिल फिनोल। In acylation reaction, this reaction also complete in the presence of anhydrous AlCl3 because it is the example of Friedel-Crafts reaction. In acylation reaction, acyl group added at ortho and para position. Acyl group, this product is acyl group ortho पे and acyl group para। माइनस HCl। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप देखेंगे तो इसमें ये NO2 ऑर्थो पे कैसे ऐड हो रहा है, पैरा पे ऐड कैसे हो रहा है, ब्रोमिनेशन रिएक्शन में Br कैसे ऐड हो गया, एसाइलेशन में एसिल ग्रुप कैसे ऐड हो गया। तो ये रिएक्शन अपन पहले ही हेलोएरिन के टॉपिक में पढ़ चुके हैं, एक अपना वीडियो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम से अपना वीडियो है, उसको देखो, उसमें सारे बेसिक कंसेप्ट बताए हुए हैं कि कौन सी मतलब एल्काइलेशन रिएक्शन है, कौन सी एसाइलेशन रिएक्शन है, नाइट्रेशन में NO2 गैस ऐड होता है, H2 किस टाइप से रिमूव होगा, तो वो चीज आपको समझनी है, ये देख लेंगे आप। अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आती है तो पहले आप एक बार फिर वीडियो देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट सेकंड टाइप रिएक्शन इज रायमैट-ईमान रिएक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन। रायमैट-ईमान रिएक्शन ऑलमोस्ट एग्जाम में आती रहती है। रायमैट-ईमान रिएक्शन, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज इन रायमैट-ईमान रिएक्शन। रायमैट-ईमान रिएक्शन में 2 पॉसिबिलिटीज है, आप 2 टाइप से रिएक्शन करवा सकते हैं। व्हेन फिनोल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक KOH। Second possibility is when phenol react with CCl4 carbon tetrachloride in the presence of KOH. Then in the presence of chloroform product Sales aldehyde is formed, Sales aldehyde, and in the presence of CCl4 product salicylic acid is formed. Salicylic acid here 2 compounds salicylaldehyde and salicylic acid, दोनों ही आपको ध्यान रखने फिनोल के कंपाउंड है। salicylaldehyde, अगर एल्डिहाइड की बात आती है तो फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे आप CHO ऐड करोगे, एल्डिहाइड मतलब CHO। salicylic acid एक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लगता है, तो एक एसिड आ जाता है तो इसका मतलब ऑर्थो पे क्या जोड़ेंगे आप COOH ऐड करवाएंगे। तो salicylaldehyde सैलिसिलिक एसिड दोनों के फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम, तरीका याद रखने का सेम रहेगा। एल्डिहाइड आता है तो CHO ऐड करवा दो तो पोजीशन पे, और अगर सैलिसिलिक एसिड आता है तो फिर क्या ऐड करवा देंगे COOH ऐड करवाएंगे आप। तो ये अपना है salicylaldehyde, इट इज salicylic acid, salicylic acid। To balance the chemical reaction, here 3 molecules of KOH and here 4 molecules of KOH takes place. 3 KCl plus 2H2O, 4 KCl plus 2H2O. It is the रायमैट-ईमान रिएक्शन। रायमैट-ईमान रिएक्शन क्या होगी? फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और CCl4 के साथ KOH की प्रेजेंस में करवाते हैं तो सैलिसिलैल्डिहाइड एंड सैलिसिलिक एसिड बनते हैं। मतलब रायमैट-ईमान रिएक्शन के दोनों प्रोडक्ट है, सैलिसिलैल्डिहाइड भी है और सैलिसिलिक एसिड भी है। अब अगर आप क्या करेंगे, आपको बोला जाए कि रायमैट-ईमान रिएक्शन केमिकल रिएक्शन लिखो, तो आप फिनोल की रिएक्शन CaCl3 और KOH के साथ कराके अगर आप सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं तो गलत है, अगर आप CCl4 लेके सैलिसिलैल्डिहाइड बनाते हैं तो गलत है। अब आप तो बोलोगे कि दोनों प्रोडक्ट तो बनते हैं इसके अंदर, दोनों बनते हैं, लेकिन बनाने के लिए आपको प्रेजेंस देखनी पड़ेगी ना। अगर क्लोरोफॉर्म लेते हैं तो आपको सैलिसिलैल्डिहाइड बनाना पड़ेगा, और जो CCl4 लेंगे तो सैलिसिलिक एसिड बनाना पड़ेगा। इस CaCl3 वाले में जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बिल बनता है, डाइक्लोरोकार्बिल। मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए अपनी सीधी रिएक्शन आप याद करेंगे। सीधी नेम रिएक्शन भी आ जाती है एग्जाम से, और क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि आप फिनोल से सैलिसिलैल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, तो इसका मतलब हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल इनटू सैलिसिलैल्डिहाइड, तो उस कंडीशन में आपको कौन सी रिएक्शन करनी पड़ेगी? रायमैट-ईमान रिएक्शन करवानी पड़ेगी। सेकंड रिएक्शन है, सॉरी नेक्स्ट थर्ड, कोल्बे-श्मिट रिएक्शन। इट इज आल्सो ए नेम रिएक्शन ऑफ फिनोल, कोल्बे-श्मिट रिएक्शन। व्हेन फिनोल react with sodium hydroxide NaOH, then we know that sodium phenoxide is formed. Sodium phenoxide, ONA and benzene. Sodium phenoxide, removal of H2O takes place. This reaction we studied in earlier classes of OH group reactions. फिनोल के OH group की जो रिएक्शन थी उसमें अपनी रिएक्शन पढ़ चुके हैं. We know that phenol is acidic in nature and NaOH is base. So neutralization reaction takes place. Removal of H2O and H replaced by Na. Sodium phenoxide. Sodium phenoxide. Sodium phenoxide further react with carbon dioxide and then gets neutralized in the presence of acid. Acidified means, sorry. Sodium phenoxide further react with carbon dioxide and acidified means reaction with acid. Then salicylic acid is formed.
एज ए प्रोडक्ट। सैलिसिलिक एसिड बात करना चाह रहा हूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा सैलिसिलिक एसिड, OH एसिड है तो COH आप ऐड करवा देंगे, COH प्लस NaCl। अगर आप यहाँ HCl लेंगे तो NaCl निकल जाएगा। अगर आप और कोई एसिड लेते हैं तो उसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। H2SO4 लेंगे तो NaHSO3 बन जाएगा। तो यहाँ एसिड जो अपन ले रहे हैं वो मान लो HCl ले लिया तो फिर क्या बन जाएगा, NaCl। ये बनाओ तो सही है। अगर आप HCl नहीं ले रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देंगे। ये क्या बन जाएगा अपना सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड पहले लिखा आपने सैलिसिलिक एसिड। So we can say that the product of Riemann-Tiemann reaction in condition in the presence of CCl4 and Kolbe-Schmitt reaction is same। मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो कि Riemann-Tiemann रिएक्शन का CCl4 वाला पार्ट और जो Kolbe-Schmitt रिएक्शन है उन दोनों के प्रोडक्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। दोनों से क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। ये है कौन सी रिएक्शन, Kolbe-Schmitt रिएक्शन। यहाँ तक तो आप जानते हैं कि आगे इसकी प्रोसेस होती है। मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है तो कोई मतलब नहीं है करने का, फिर भी आप कहें तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको सीधा याद कर लेना चाहिए। जो कैंडिडेट नीट की तैयारी करते हैं उनके लिए, या जो JEE की तैयारी करते हैं उनके लिए मतलब मैकेनिज्म जरूरी है, तो मैकेनिज्म अपन करवा देंगे। और शॉर्ट में भी आप देख सकते हैं, इसकी एक ट्रिक अपन बना लेते हैं। वो ट्रिक क्या है अपनी, फेस पर फोकस कर, फेस पर फोकस कर। इस ट्रिक से आप Kolbe-Schmitt रिएक्शन याद कर सकते हैं। इसमें जो पर और कर है वो तो क्या है कि ट्रिक को पूरा करने के लिए अपने लिया है। ये साइलेंट है, यहाँ पे इनका कोई रोल नहीं है। बाकी इस जो फे है, इस फे का मतलब यहाँ फिनोल से है। ये जो से है, इस से का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। यहाँ जो फो बना है, फो उसका मतलब है फिनोक्साइड, फिनोक्साइड। ये जो के है, इस के का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और ये जो से है, से का मतलब है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। फेस पर फोकस कर, फेस पर ही फोकस करना है, वैसे भी आप करते ही हैं। फेस पर फोकस करना चाहिए। तो उस फेस पर फोकस कर, उस आधार पे आप इसको समझ सकते हैं कि इसे आप कोई थ्योरी बना सकते हैं कि व्हेन फिनोल react with sodium hydroxide then intermediate phenoxide means sodium phenoxide is formed which further react with CO2 then salicylic acid is formed. It is the Kolbe-Schmitt reaction. In Kolbe-Schmitt reaction, salicylic acid formed. We know that OH is ortho and para director group. Ortho and para director group. Then COOH may be attached at para position, but in Kolbe-Schmitt reaction only COOH attached at ortho position because here OH and COOH forms intramolecular hydrogen bond. By this bonding, compound is more stable. So only COOH group attached at ortho position. OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, लेकिन यहाँ से ऑर्थो पैरा क्यों होता है, क्योंकि ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसके कारण से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इसको यहाँ से ये बना कैसे है उसको समझने के लिए आप इस टाइप से कर सकते हैं कि इसमें इंटरमीडिएट क्या होता है कि सोडियम फिनोक्साइड बना है तो फिनोक्साइड आयन बन जाता है। और फिनोक्साइड आयन से फिर मतलब क्या है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे वो फिर क्या है CO2 पर अटैक करता है। CO2 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इससे क्या बन जाता है, ये सैलिसिलिक एसिड बनता है। Fourth type reaction is Gattermann formulation reaction. Gattermann formulation reaction. It is also named reaction. Gattermann formulation reaction. In Gattermann formulation reaction, formulation, formyl word used. Formyl is the prefix for aldehyde group. ये जो फॉर्मिल ग्रुप है, जो फॉर्मिल जो वर्ड आ रहा है वो किसके लिए यूज करते हैं, एल्डिहाइड का क्या होता है, ये प्रीफिक्स होता है। तो इसमें फॉर्मुलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ फॉर्मिल मींस एल्डिहाइड। इन दिस रिएक्शन एल्डिहाइड ग्रुप एड्स टू द फिनोल, फॉर्मिल मींस बेंजीन रिंग। मतलब इस रिएक्शन में जो CHO ग्रुप है वो ऐड होगा। अब ये रिएक्शन होती क्या है, व्हेन फिनोल रिएक्ट विद मिक्सचर ऑफ HCl एंड HCl।
hydrochloric acid and hydrogen cyanide in the presence of ZnCl. In the presence of ZnCl2, then a intermediate aldehyde is formed. Aldehyde is formed, which on further hydrolysis to give para-hydroxybenzaldehyde. Para-hydroxybenzaldehyde product is OH CHO plus NH3. The name of compound is para-hydroxybenzaldehyde. Para-hydroxybenzaldehyde. Intermediate is aldehyde. So one is amine and it is imine. Imine is a compound in which double bond present between carbon and nitrogen. कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड होता है। ये चीज आप याद रखेंगे आगे जब भी इमीन का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। याद कर लेना, सीधा मतलब तरीका है अपना याद करने का कि जब भी आप इमीन मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, ई आ रहा है नाम इमीन, तो फिर उसका हाइड्रोलाइसिस जब भी करवाते हैं अपन, तो हाइड्रोलाइसिस करवाने से क्या होगा कि वाटर है, तो वाटर में O और H है, तो उस कंडीशन में आपको O तो ऐड करवाना होता है CH की तरफ, कार्बन की तरफ, और दोनों जो H है 2H वो ऐड करवाने होते हैं नाइट्रोजन की तरफ। तो फिर देखो यहाँ CH के साथ O ऐड कराएंगे, क्या बनेगा CHO। वैसे यहाँ से करवाया अपन, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करा दिया, तो ये बन गया CHO और साथ में NH के साथ 2 H जुड़ेंगे तो क्या बनेगा NH3 फिक्स है। ये यहाँ अपन बात तो कर रहे हैं कि मिक्सअप ऑफ HCl एंड HCl, ये HCl, तो ये कैसे बन गया, इसका नाम क्लोरोइमीन है। क्लोरोइमीन, इमीन फिर देखेंगे CH और N के बीच में डबल बॉन्ड है तो इमीन है, क्लोरो जुड़ा हुआ है इसलिए नाम इसका क्लोरोइमीन है। ये कैसे बना है, हाइड्रोक्लोरिक इज एसिड, एसिड रिलीज H प्लस आयन, bond goes to nitrogen because the negativity of nitrogen is greater than carbon। तो यहाँ ये चेंजमेंट होने से देखेंगे आप, ये जो Cl है वो तो जुड़ेगा CH के साथ, तो ये बन जाएगा क्या अपना ClCH, ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल, N माइनस है उसके साथ H जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा NH। ये अपना हिंट है। आपको थ्योरी जो लिखनी है उसके अंदर तो ये लिखना होगा कि when phenol react with HCl and HCl then aldehyde is formed which on further hydrolysis to give para-hydroxybenzaldehyde। अब ये क्लोरोइमीन बनी कैसे है उसके लिए देख लेंगे। HCl और HCl जो मिक्सर है वो आपस में क्या होगा, कंबाइन होगा, रिएक्शन करेगा इस टाइप से। यहाँ से ये कैसे बन गया, यहाँ से कैसे बना, तो इस टाइप से बना। ये इसकी पैरा पोजीशन पे H है और इसका क्या काम ले लिया Cl माइनस से ऐसे जोड़ देंगे, पैरा पोजीशन पे अपने पास बॉन्ड बनेगा para-hydroxybenzaldehyde। ये क्वेश्चन आरबीसी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था, हाउ विल यू कन्वर्ट या हाउ विल यू प्रिपेयर para-hydroxybenzaldehyde फ्रॉम फिनोल। आप फिनोल से para-hydroxybenzaldehyde कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल इज फ्राइस रीअरेंजमेंट। फ्राइस रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट का मतलब है डिलोकलाइजेशन और rearrangement of any atom or group in a compound। When phenol react with acyl chloride, seen carefully here, not anhydrous LCl3। If here anhydrous LCl3 is present, then reaction is Friedel-Crafts acylation reaction। Friedel-Crafts acylation reaction जो पीछे अपन जस्ट पढ़े हैं, लेकिन यहाँ anhydrous LCl3 नहीं है, फिर भी एसाइलेशन रिएक्शन होगी तो रिएक्शन कहां से होगी, उसमें OH का H और Cl का क्या Cl माइनस से HCl। फेनिल एसीटेट जो एस्टर होता है वो पहले पढ़ चुके अपन, बना देंगे इसके अंदर। ये इसका H लाके Cl हटा दिया अपन ने, O के साथ C डबल बॉन्ड हो CH3। फेनिल एसीटेट इंटरमीडिएट बना अपना क्या फेनिल एसीटेट which pass through anhydrous AlCl3 in nitrobenzene।
ये जो फेनिल एसीटेट बना है उसको एनहाइड्रस HCl3 की प्रेजेंस में नाइट्रोबेंजीन में क्या करते हैं, पास से करते हैं। तो उस कंडीशन में जो एसिल ग्रुप है वो रीअरेंज हो जाता है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ कंपाउंड, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ कंपाउंड। दिस इज नोन एज फ्रेश रीअरेंजमेंट। ये जो एसिल ग्रुप है, एसिल ग्रुप ये रीअरेंज होगा, यहां से चलेगा एक बार ऑर्थो पे आएगा तो ऑर्थो पे एस नहीं है क्या, वो एच हट जाएगा, ओ के साथ ऐड हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा अपना OH और एसिल ग्रुप ऑर्थो पर। ऐसे ही ये कहां पर आ सकता है, पैरा पर भी आ सकता है। तो प्रोडक्ट इस टाइप से बन जाएंगे अपने। पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन एंड ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन इनके नाम होते हैं। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन ऑनवर्ड कीटोन के लिए हुआ है, सिमिलरली इसका नाम क्या होगा, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। तो व्हेन फिनोल रिएक्ट विद एसिल क्लोराइड देन इंटरमीडिएट फेनिल एसीटेट इज फॉर्म्ड व्हिच pass through anhydrous HCl3 in nitrobenzene, then rearrangement of acyl group takes place at ortho and para position. This reaction is known as Fries rearrangement. Fries rearrangement. एक रिएक्शन और है, इसकी लास्ट में देख लेंगे, डफ रिएक्शन। Duff reaction, it is also a name reaction. Duff reaction, when phenol react with hexamethylene tetraamine. Methylene means CH2, hexa means 6, CH2 6 and 4, CH2 6 and 4, hexamethylene tetraamine. In the presence of H3BO3 and glycerol. In the presence of H3BO3 and glycerol, then an intermediate is formed. ये एक स्टेप है, वो आपको याद ही करना है, मैकेनिज्म थोड़ी बड़ी रह जाएगी इसकी, तो याद कर लेना कि फिनोल की रिएक्शन हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के साथ करवाते हैं H3BO3 और ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में, तो इंटरमीडिएट बनता है विच ऑन हाइड्रोलाइसिस। Here we see it is also a imine, then hydrolysis takes place and O attached here and hydrogen attached with nitrogen, then product is OH। बताइए आप, CH है, इसके साथ क्या ऐड कराओगी O, तो क्या होगा CHO प्लस CH3 N के साथ 2 H जोड़ेंगे तो NH2 बन जाएगा CH3NH2। ये जो ऊपर बता के आए थे अपन हिंट, ये वाला पार्ट वैसा ही है, इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस करवाया अपन ने। क्या प्रोडक्ट बना है, सेलेस एल्डिहाइड। क्या बना है, सेलेस एल्डिहाइड। प्रोडक्ट का नाम अपना सेलेस एल्डिहाइड। तो सेलेस एल्डिहाइड प्रोडक्ट बना है। सेलेस एल्डिहाइड और भी बना था, कहां पर, रायमंड रिएक्शन में। तो रायमंड रिएक्शन का जो क्लोरोफॉर्म वाला पार्ट है वो, और जो डफ रिएक्शन है उसका प्रोडक्ट क्या होता है, सेम होता है, सेलेस एल्डिहाइड। और गोल्बी स्मिथ रिएक्शन और सीसीएल फोर वाला प्रोडक्ट सेम होता है, उसका क्या होता है फिर अपने पास क्या, सैलिसिलिक एसिड। स्टूडेंट्स अच्छे से इसको समझो, प्रैक्टिस करो। केमिकल रिएक्शन को याद करने का तरीका है, आप बार बार क्या करेंगे, इसको रिवाइज करते रहे, करके देखेंगे तभी होगा, नहीं तो फिर रिएक्शन क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। आप कंटिन्यू इसको याद करते रहेंगे, लिख कर याद करेंगे तो याद हो जाएगी। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, हर 1-2 दिन के बाद में पीछे की रिएक्शंस को रिवाइज करा करो। Thank you, students.